Hello students, today we are going to see NCERT grade 8 chapter 3 a story of numbers part 2. Yesterday we have done part 1 जहां पे मैंने आपको समझाया था कि earlier when your forefather and fathers were there that time जब numbers नहीं थे तो हम लोग कैसे करते थे, जब numbers नहीं थे we used to count or everything by sticks or pebbles. ओके तभी 1 2 3 4 नहीं था, therefore अल्फाबेट थे. चलो तो अल्फाबेट के वे से भी हमने कैसे किया. So now the second part to method that is the Roman numerals. Today we are going to understand about the Roman. Before starting with the figure it out, I am going to explain you about Roman numerals. Let's do it. I hope you have already done it in your 6th standard, 7th standard. एक बार सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, रिकैप कर लेते हैं हम लोग. You remember वहां पे पहले I था. Yes, this I stands for in Roman number में what? 1. Then there was V. V stands for what is V? That is 5. You remember? Yes. Then there was X. X stands for 10. फिर उसके आगे हम X के आगे 1 2 3 4 लिखेंगे तो accordingly numbers रहता है. Yes. Is it very clear? अब then we have also done L, C, D, M. In your which standard? It was just comment me and tell me in which standard you have done these numbers. Okay. क्या था? L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000. Is it clear? Yes. So ये numbers हमें याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? Especially these are all standard I should say. ये which are these? I, V, X, L, C, D and M. Is it very clear? See this 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. These are you have to remember it because ये बहुत जगह आपको यूज होने वाले हर नंबर के बीच में. Yes. जो नंबर 1 है ये ओके X है that is 10. C है it may be repeated twice or thrice only. ओके ज्यादा नहीं हम इसको यूज कर सकते, लेकिन जैसे V है L है D है इसको हम रिपीट नहीं करते हैं. See for example when I say VV or VVV or LL, are you understanding? या DD या DDDD, रोमन नंबर्स में ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है. These are invalid. Is it very clear? These all are invalid. M is the only number जिसको आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं. You can write it as 4 times M. That means it will become 4000. You can write it as 3 times, that is will become 3000. Yeah, 5 times it will become 5000. Is it very clear? So this you can repeat it. This is valid. But yeah, when it comes to VLD, you cannot repeat more than 1 time. Are you understanding everyone? Yes. Whatever I am saying, it will be making you sense when I write the numbers. Then you will understand more clearly. Okay, let's do it. What we are saying. Suppose if I am writing it 1 1. What is this number? This is 2. Very good. What is this number? 1 1 3. This is 3. When I write XX, XX means 20. When I include one more X, this means 30. Is it very clear? Then I write CC. What is CC means? C means what? 100. And again C means 100 and 100, 200. Is it clear? If you write CCC, of course this becomes 300. When I am writing MM, see M stands for 1000. Again 1000. 1000 plus 1000, 2000. If I am writing it 1, 2, 3, 4, 5, this will be how much? 5 times, that means it will be 5000. Is it very clear? Are you understanding? Any doubt? Now L stands for how much? It stands for 50. But अगर मुझे 43 लिखना है, how much I have to write? 43. तो मैं कैसे लिखूंगी 40? 40 का तो कोई नंबर नहीं होता. तो L के पहले आप अगर X लिखते हो, X stands for 10, L stands for 50. 50 minus 10 क्या हो जाएगा? 40. And 3 है तो आगे क्या आएगा? 1 2 3 डॉट्स आएंगे, 3 लाइन्स आएंगी. Is it very clear? Again 1 2 3 that is equal to 43. अगर मुझे 63 लिखना है, so how will I write? L is there? Yes.
L के आगे आप लिखोगे तो वो 60 हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेन यू राइटिंग x बिफोर तो वो माइनस हो जाता है, वो 40 बन जाता है. व्हेन यू राइटिंग इट आफ्टरवर्ड्स देन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स एडिशन, देन इट इज 50 प्लस 10 दैट इज 60. एंड अगर मुझे 63 लिखना है तो दिस वे आई एम गोइंग टू राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज मुझे 90 लिखना है. व्हाट आर टू राइट? 90. Now 90 you have one number जिस that stands for 100. कौन सा वो नंबर जो 100 के लिए स्टैंड होता है? यस, C. C stands for 100. पर 100 में से मैं क्या माइनस करूंगी कि मुझे 90 आएगा? 10. तो 100 में से 10 कैसे माइनस होगा? आफ्टर बिफोर लिखोगे आप x. Is it very clear? So this stands for what? 100 minus 10, not 90. 100 minus 10. And what is this? This is 50 minus 10 basically, and then plus 3. I hope you are understanding what I am saying. See, ये छोटे छोटे है, लेकिन of course अभी वो बेसिक जो आप रोमन नंबर्स पहले कर रहे थे उसे थोड़ा सा भी एडिशन आपको करना पड़ेगा, because now you are in NCERT grade 8 and grade 8 में आके NCERT के डेफिनेटली आपके थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा रोमन न्यूमरल्स को लेकर. Is it clear? So these all are basics. Suppose I have to write 55. How will I write 55? You only tell me. 50 के लिए क्या वर्ड है? L है. 5. 5 is what? V. So this stands for LV. LV stands for 55. Is it very clear? अगर ये आपको समझ में आया है तो हम लोग figure it out start कर सकते हैं. So next figure it out which we are going to do, that is second figure it out. It is basically, let's see, it is on which page number in your textbook? Yes, it is on page number 59. So figure it out. Page 59. Okay. चलो start करेंगे. What is the first number they have said? First number is, what is the number? That is 1 2 2 2. See कैसे लिखोगे इसको? Directly Roman number लिखने से there will be confusion. So what you can do, you can expand this number or you can split it. See, 1 is on which place? Ones, tens, unit, thousand, right? 9. Ones, tens, 100, 1000. Is it clear? अगर 1000 है तो क्या करोगे? इसको लिखोगे 1000 plus 200 plus 20 plus 2. Is it clear? What I said? 1000 plus 200 plus 20 plus 2. अभी 1000, you remember LCDM? कहाँ लिखूं मैं? इधर लिखूं LCDM. ये कोड याद रहेगा. See, LCM HCM हम करते थे ना पहले, तो LCM के अंदर आप एक D डाल दो, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बिकॉज सेम सीक्वेंस में. सी असेंडिंग ऑर्डर 50 100 500 1000 याद रहेगा. ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं. अगर मैं M में है, M stands for what? 1000. So this will become what? M. This is 200. 200 मेरे पास कोई नंबर है इसमें नहीं है, लेकिन मेरे पास C है, तो आई राइट इट 2 times C. 20 कैसे लिखते हैं हम लोग? डबल X. Yes. And 2 तो we know it very well. Understood? How to write this? Clear? चलो next do the second one. 2999. कैसे करेंगे 2999? सिंपल, अगेन बाइफरकेट करो इसको, मतलब एक्सपांड फॉर्म में कर लो. 2000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9. 2000 वी नो वेरी वेल क्या है? 1000 स्टैंड्स फॉर M. अगर 2000 लिखना है तो क्या होगा? 2 बार M आएगा. यस. 900, अभी 900 तो मेरे पास है नहीं, पर मेरे पास 1000 है. सी 500 से 900 बहुत दूर है, लेकिन 1000 से 900 नजदीक है, तो मैं पहले 1000 लिखूंगी और 1000 के पहले क्या 100 माइनस कर दूं, तो 100 क्या है वो? इट इज C. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये हो गया 2000, ये हो गया 900. 90 कैसे लिखोगे? 100 भी नो. 100 क्या होता है? C. और C के पहले अगर मैंने X लिखा तो वो हो गया 90. See, are you understanding? This is 2000. This is your 900. 1000 के पहले C लिखा, मतलब 1000 minus 100. This is what? 100,000 minus 100. This is 1000 plus 1000. Are you understanding? और ये क्या है?
ये सी कितना होता है 100, तो ये क्या हो गया 100 माइनस 10 दैट इज 90, और 9 तो आई नो इट वेरी वेल, क्या है ये 9 जिसको हमने पहले भी किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज आंसर? एम एम सी एम एक्स सी 1 एंड एक्स। इज इट वेरी वेरी क्लियर? दिस इज कॉल्ड 2999। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से करोगे तो इजी पड़ेगा आपको लर्न लिखने को, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज थर्ड वन करें। व्हाट इज थर्ड वन नंबर? थर्ड इज वेरी सिंपल, 302। कैसे करोगे 302? 3 इज एट विच प्लेस? 100 प्लेस, तो 300 हो गया, प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, एंड देन 2। इज इट क्लियर? तो 300 मतलब 3 इंटू 100 है, तो 100 का कौन सा है? सी है, तो मैं कितनी बार लिखूंगी? सी सी सी, दैट इज 100, एंड 2 इज 2, तो दिस इज 302। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज 302। नेक्स्ट डू द फोर्थ वन। कैसा आएगा? 715। व्हाट इज द नंबर? 715। चलो 715 करेंगे। क्या है 715? 700 प्लस 10 प्लस 5। तो अभी मैं 700 सी को 7 टाइम्स लिखूं? नहीं, बिकॉज आई हैव वन मोर नंबर दैट इज 500 जो नजदीक है 700 के, तो मैं पहले 500 लिखूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं क्या लिखूंगी? पहले 500 लिखूंगी, देन 100 के लिए कौन है? सी सी, मतलब दिस इज 500, दिस इज 100, दिस इज 100। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हो गया 700। 10 आई नो इट वेरी वेल, 10 एंड देन 5। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया आपको ये चारों सम? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 सम्स, आई कैन गिव यू फ्यू मोर सम्स। फ्यू मोर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका रोमन नंबर और अच्छे से आ जाएगा। यस, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको सेम नंबर्स मिले। इज इट क्लियर? बिकॉज ये आपने अच्छे से अगर रिवाइज किया तो आपको आगे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर यही गड़बड़ हुआ तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। यस, चलो लेट्स डू इट। और नंबर्स कहते हैं, बट वी हैव फिनिश्ड विद द फिगर इट आउट पेज नंबर 59 पे जो नंबर्स हैं, बट देयर आर फ्यू मोर नंबर्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, वो भी हम कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा और प्रैक्टिस से अच्छे से। सो रेडी ना? एक बार आपका रोमन नंबर पक्का हो गया, देन आपको आगे जो सारे हैं मेथड्स वो हम लोग देख लेंगे। यस, तो नेक्स्ट नंबर चलो लिखते हैं। नाउ यू हैव टू राइट द हिंदू न्यूमरल्स, आई एम गिविंग यू द रोमन नंबर्स। ट्राई करो, चलो। ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन, और ये है फोर्थ। ये 4 नंबर्स आप ट्राई करिए अपनी बुक में। अगर आ जाता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आएगा इसके आंसर्स। डेफिनेटली कमेंट करना मुझे कि ये 4 सम्स मैं आपको दे रही हूं, अगर ये आपको अच्छे से आना चाहिए। डू यू वांट आई शुड डू इट? नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नहीं करूंगी। करना चाहती हूँ? चलो करते हैं, स्टार्ट करो। ये क्या है? 10 10 10, मतलब कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो दिस इज हाउ मच? 35। समझ में आया ये नंबर? ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। अब ये क्या है? 50 है। 50 के बाजू में 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड प्लस 4, 60 70 80, दैट इज हाउ मच? नंबर इज 84। इज इट क्लियर? नंबर क्या है? 84 है। आगे डू इट, आगे वाला करो। मेरे स्टार्ट करने से पहले आप लोग करो तो आपको समझेगा कौन से नंबर है ये। ओके, अब ये 50 के पहले 10 लिखा है, तो मतलब क्या हो गया? ये 50 माइनस 10 हो गया, और ये प्लस 6 हो गया, तो क्या आएगा नंबर? यस, इट विल बी व्हाट? 46। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? सिंपल है, कोशिश किया आपने सबने?
लेट्स डू दिस वन. इज इट क्लियर? अभी ये सी और सी ट्राई कर लिया आपने. चलो लेट्स सी, आपका चेक करो राइट है कि नहीं. दिस इज 100 प्लस 100 प्लस L stands for 50 plus 8. Is it clear? तो कितना हो जाएगा ये? 200 plus 50 plus 8. That is how much it will be? 258. Is it clear? This is 258. So this way स्लोली हर एक स्टेप्स के साथ आपको सॉल्व करना है. यस, अगर आपको ये समझ में आया तो डेफिनेटली आप आगे और भी कर सकते हैं. इज इट वेरी वेरी क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी ऑन माय चैनल. अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो उनको भी इस चैनल से बेनिफिट मिल सके. यस, एनी डाउट टिल हियर? दिस इज कॉल्ड अ रोमन नंबर मेथड. ये रोमन नंबर समझ में आ गया क्लियरली? ओके, देन मेरे पास कुछ और भी नंबर्स है जो मैं देती हूँ आपको एज अ होमवर्क. आप करिए, इस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देयर आर फ्यू नंबर्स विच आई एम गिविंग यू. करने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या आंसर मिला. ओके, यू हैव टू राइट डाउन इन द रोमन नंबर. राइट इन रोमन numerals. Okay, this I am giving you as a homework, or you can say as a for practice purpose. Okay, what is the first one? 637. Second one is 481. C is 1642, and the D is, so these numbers are equally important for your exam point of view also. Okay, तो आपको ये करना है, तो आप करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा. आप कर रहे हैं या मैं करूं? चलो मैं करूं. ओके, ट्राई करते हैं. चलो स्टार्ट करो. व्हाट आर दिस 637? 6 किसके नजदीक है? 500 के. 500 मतलब क्या होता है? डी. आगे मैंने क्या लिखेगी तो 100 हो जाएगा. सी. 30 कैसे लिखते हैं? 2 3. 7 कैसे लिखोगे? 5 6 7. अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा? डी सी ट्रिपल एक्स और ये 7. इज इट क्लियर? 400 किसके नजदीक ज्यादा है? 500 के. तो डी के पहले मेरा क्या आएगा? सी. मतलब क्या हो गया ये? दिस इज 500 माइनस 100 इज 400. 80 कैसे लिखूं मैं? हाउ आई शुड राइट 80? यू ओनली टेल मी एवरीवन. 50 लिख सकती हूँ ना मैं? 50 लिखा. 60 70 और 80. सिंपल. 60 70 80 और ये 1. इज इट क्लियर? नाउ 1642 मतलब 1000 पहले मेरे को सोचना है. इज एम. 600 के लिए मैं क्या करूंगी? पहले 500 लिखूंगी और फिर सी लिखूंगी. यस, और उसके बाद 42 कैसे लिखेंगे? 40 कैसे लिखेंगे? एल लिखा और उसके पहले मैंने एक्स लिखा. दैट इज 40 हो गया. एंड 2 1 2. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 2000. 2000 मतलब 2 बार आना आएगा. 1000 प्लस 1000 दैट इज 2000. फिर मेरा डी आ गया 500 क्योंकि 700 चाहिए ना, तो मैंने 600 700. आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज 2000, दिस इज 500 600 700. तो 2700 हो गया. अभी 99 कैसे लिखेंगे? व्हाट इज एल स्टैंड्स फॉर? नहीं, सी स्टैंड्स फॉर 100 ना, और 100 के पहले अगर हमने एक्स डाला तो क्या हो गया? 90 हो गया. यस, एंड 9 कैसे लिखते हैं? आई एक्स. तो दिस इज 2799. Is it very clear? I hope you have understood. So with that we have finished today the figure it out page number 59. जो क्वेश्चंस थे उसमें वो भी करवाए, प्लस जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा है वो भी मैंने करवा दिए ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए. अगर यहाँ तक समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना. यस, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर करना. थैंक यू.